Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. You're keeping safe. I just got finished designing your quiz for today at 5 p.m. Hamad is very much right. There are continuous and uncertain and unannounced power fluctuations, but then again, it's a common problem at your end and my end. Both we can only take care of things which are in our hands, right? Okay? Not which are beyond our control. So that part is something we can't just manage. Okay, it's unannounced, is uncertain, and it tends to be whenever it wants to. So that is something we just can't manage. Nonetheless, the quiz would be at 5 o'clock. Okay, I've tried to suggest a time which is the timing of your standard classes. Okay, as per your timetable, your classes from 2:30 to 5:30. So keeping that into consideration, any time in the slot suits me. I just wanted to be at 5 so that you have more time to prepare, okay, for the quiz. And since it's your last quiz, so I want you to score well on it. Soon I am to sit down to design your final papers. Please listen very carefully. There were instructions from the management in the entire university that your paper is going to be a one-day sitting for straight 8 hours, and you'll be assessed for your write-ups on plagiarism too. So your assignments and whatever you've been submitting so far, there was a higher plagiarism content in it. Everyone knows, right? So I don't want to bring it up again, but please make sure that your finals, which are for 50 points, you're not goofing it up. Okay, don't goof it up by doing something that is regrettable towards the end of the day and for the entire semester. Okay, you have taken things smoothly. These 4 months were a difficult, uncertain journey for you more because you are the learners. But then again, you have done the learning by leaps and bounds. So it's the terminal end of the semester where you're giving up your finals. Do not mess up, please. Okay, it's a 50 marks attempt. You have 8 hours, give it your best shot, and you are suggested not to do any plagiarism, please. Don't copy and paste. There are strict rules. There is a policy where you are not to copy the work. I mean, whatever the Word document you're sending me, I'll put it on a plagiarism software. Okay. So if the plagiarism exceeds to a certain percentage, which I'm going to share with you for sure, okay, you are going to lose your marks. So please don't crib about that later, because neither me nor your management can help that out. Okay, right? That was just a suggestion so that when you're preparing your chapters after the midterms till your finals, for the final exam attempt, so you are learning the content analytically. Okay, and you have the ability to put things in your own words. Okay, see how you can snap plagiarism to a maximum content is that your paper is going to be an open book paper, right? So for instance, if I've given you a question from this part of the page, let's suppose your question is on online content and I'm asking you what it is. Plagiarism arises when you are exactly copy cutting and pasting the whole thing on the paper. So don't do that. Why would you be so stupid? Don't do that. Just read the whole passage. If I am in front of you, if I am a candidate just like you, I'll read the whole passage. I'll try to find the gist of it. If this passage talks about two things, list those two things on a piece of paper, one, two. Okay? And then read the passage 3 times. Read the passage 3 times so you get the root of it. You get the antecedents and the consequence of whatever the length is described here. And then the 2 points around which the whole passage revolves, you write a draft around it. Don't copy the thing from here. And if you're writing the whole thing from your own vocabulary, obviously the plagiarism won't be that high, or there won't be any plagiarism in the first case. Okay, so please be smart in 50 marks paper. My job was just to alarm you, acquaint you, and alert you with the policy that you're not supposed to copy anything from the book or any other source. Copy and pasting is certainly, strictly not allowed, beta. So please be just wary of that. Okay. So you've had some 45 sessions so far, and today it'll be your 48 sessions. Okay, 3 more sessions to go and 3 more hours to go, 3 more hours to go as a class, and you'll be having your 48 sessions. Your management is of the view that this semester is for 16 sessions. So earlier the standard semesters classes are 15 sessions, 15 times 3 is 45, but this time
they are having it for 16 sessions, so that makes 48 hours. Okay, so today when I get done briefing you on the content, that's going to be some 48 hours, and the last session, the last lecture session. Okay, right? So as usual, I'm going to give you an overview of this chapter. The details have to be dealt by you yourself. You're more than welcome to get back to me on whatsoever the content I'm sharing with you, the content I'm asking you to read yourself in a week's time, as in today is 18th. So take another 7 days, and by the next 7th day, you should be able to get back to me on the questions. Right after that, you cannot better. Remember that, okay? Because soon I have to sit down to make your own paper, and I have other papers to design too. So kindly don't reach out to me at your comfort level. There are timings for everything. Okay. So let us start this chapter. This chapter is better on online content and media. A very interesting chapter. I was going through it last night for your sake. A very interesting chapter, and an easier one to make sense. There's nothing scary, nothing technical, nothing cryptic, nothing abstract in it. Okay. It is something you have observed. It is this chapter is more an enlightenment. Okay, it's opening uh, doors of analytics for you, and it wants you to see things, observe matters at an underlying level. So there are matters right in front of you. You've been seeing them for many years now. Okay, it's just that the chapter wants you to look at things differently. So they have very much been in your focus. Okay, so it's an easier chapter. Yeah, I mean, what you've been studying throughout the chapter, throughout the course, in the initial chapters, you've been through the most difficult and hardest of all the content. So this one is a soft reading, soft good reading, I would say. So it's on online content and media. Let me first brief you on the chapter's content. देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? पढ़ेंगे ऑनलाइन कंटेंट एंड मीडिया। तो पहले तो हम फेमिलियराइज करेंगे अपने आप को कि ऑनलाइन कंटेंट क्या चीज है और हम इसको मीडिया के साथ कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो the entire chapter is basically on online content, okay, but just for the sake of opening the window to the chapter's title, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट क्या होता है। ठीक है, लेट अस बाइट साइज द होल आइडिया। हम ऑनलाइन कंटेंट को पहले हम थोड़ा सा टेंटेटिवली डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ना चाह रहे हैं ना, चैप्टर का टाइटल तो पता हो हमें कि क्या चीज है ये। अच्छा, मीडिया के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी है आपको कि मीडिया क्या होता है। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन कंटेंट क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। इस चैप्टर में दोनों को जो है विल मैच देम अप एंड विल स्टडी टुगेदर। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हम जब गूगल खोलते हैं, गूगल का पेज खोलते हैं, याहू का पेज खोलते हैं हम, ठीक है, और हम फॉर इंस्टेंस हम ईबे पे जाते हैं, हम अमेजोन पे जाते हैं। चले फिलहाल अभी हमसे गूगल और याहू की बात करते हैं, हमसे गूगल और याहू की बात करते हैं। हम चलो यूट्यूब की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, सही, हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, हम गूगल की बात कर रहे हैं, हम याहू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले मैं यूट्यूब की बात करूंगी। तो यूट्यूब जो है आज हमारे लिए क्या कर रहा है, और हम बात करते हैं स्पेशली न्यूज को लेकर। गौर से मेरी बात सुनिए, हमें जब न्यूज सुननी होती है, खबरें मुझे सुननी होती हैं, तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं टेलीविजन से खबरें सुनूं जाके, मैं टेलीविजन खोलूं जाके, आई पुट माई टेलीविजन ऑन। टेलीविजन पे केबल है, टेलीविजन पे सैटेलाइट टेलीविजन है, उसकी अपनी नशियात होती है, उस नशियात में न्यूज एक हिस्सा होता है। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं न्यूज टेलीविजन पे जाके सुनूं। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन ये है कि मैं यूट्यूब पे जाके लाइव जो चैनल्स हैं आज उनको जाके मैं लॉग इन करूं और मैं यूट्यूब से लाइव न्यूज सुन सकूं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं आज के ऑनलाइन कंटेंट जो है वो काफी वास्ट है। आज मुझे न्यूज सुननी होती है तो नॉट नेसेसरी कि मैं टेलीविजन जैसे डिवाइस के पास बैठ के न्यूज सुनूं, मैं आज यूट्यूब से भी वही न्यूज का कंटेंट ऑनलाइन देख सकती हूँ। सो यूट्यूब क्या कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। मेरी बात सुनते जाइएगा प्लीज। यूट्यूब क्या कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है ना। मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव ये है कि मैं जो स्टैंडर्ड टेलीविजन है मेरा, जो सादा टेलीविजन मेरे यहाँ पे घर पे होता है, जिसपे केबल और सैटेलाइट टीवी चलता है, ठीक है, उस पर जाके मैं न्यूज सुन सकती हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है कि मेरे रूम में टेलीविजन नहीं है तो मैं अपने लैपटॉप पे जियो न्यूज लाइव पे जाके जो है यूट्यूब पे जाती हूँ मैं, और ये टाइप करती हूँ और मैं लाइव खबरें वहाँ पे सुन सकती हूँ।
जाके। आई डोंट नीड अ डिवाइस ऑफ टेलीविजन सेट टू लिसन टू न्यूज। सो यूट्यूब ने क्या किया, मुझे ऑनलाइन कंटेंट सारा प्रोवाइड किया, वही कंटेंट जो टेलीविजन के थ्रू, जो टेलीविजन प्रोवाइड करता है, जो न्यूज में टेलीविजन से देखती हूँ वही न्यूज आज मैं यूट्यूब से देख रही हूँ। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है रेडियोस भी लोग सुनते हैं। जैसे टेलीविजन को ऑल्टरनेट क्या है, टेलीविजन से न्यूज सुननी होती है, तो आज टेलीविजन जो है वो चैनल्स लाइव भी ऑपरेट कर रहे हैं ना। जियो न्यूज का जो चैनल है, जियो न्यूज जो है वो ऑनलाइन कंटेंट भी, ऑनलाइन इंटरनेट से भी, वेब के थ्रू भी मैं जियो न्यूज को सुन सकती हूँ। हमेशा टेलीविजन पे जाके सैटेलाइट टेलीविजन के थ्रू या केबल के थ्रू न्यूज सुनने की हमेशा जरूरत नहीं है। आई एम नॉट बाउंड टू डू दैट। ठीक है, सही है। मैं आज यूट्यूब से जाके भी सुन सकती हूँ, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव है। तो ऑनलाइन जो कंटेंट अवेलेबल है ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है हमें टू वॉच न्यूज अदरवाइज टू। ठीक है, मेरी मेरी मर्जी है कि मैं एज ए कंज्यूमर, एज एन ऑडियंस, टेलीविजन से न्यूज सुनूं या मैं यूट्यूब से जाकर सुनूं। लेकिन बहरहाल यूट्यूब पे भी न्यूज अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं ऑनलाइन कंटेंट। अब आप मुझे बताएं कि यूट्यूब पे सिर्फ न्यूज होती है? नहीं, यूट्यूब पे अगर मुझे मूवीज देखनी है, यूट्यूब पे अगर मुझे वीडियोस देखनी है, मुझे अगर शोज देखने हैं, तो ये सब चीज अवेलेबल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझे कोई टॉक शो बहुत पसंद है, वो टेलीविजन पे भी आता है, लेकिन टेलीविजन पे शायद मेरे रूटीन के टाइमिंग्स क्लैश करते हैं। मैं उस टाइम पर पढ़ा रही हूँ आपको, या मैं जिम में हूँ, या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, या मैं खुद पढ़ रही हूँ, या मेरी और कमिटमेंट्स हैं, तो शायद टेलीविजन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मुझे नहीं मतलब फीजिबल मेरे लिए, या टेलीविजन के लिए मुझे पर घर पे होना लाजमी है। टेलीविजन मेरे साथ अगर बाहर तो नहीं होता ना, लेकिन मेरा टैब, मेरा फोन, मेरी स्क्रीन, मेरे पास मेरे जो स्मार्ट गैजेट्स हैं, जो हैंडी स्मार्ट गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स है, वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। तो मैं उन तमाम मीडिया की चीजों का एक्सेस जो है, मुझे जितना भी मीडिया है, मुझे फॉर इंस्टेंस लाइव म्यूजिक सुनना, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग से म्यूजिक सुनना है, तो एक ऑप्शन क्या है कि मैं घर आके अपना होम थिएटर सिस्टम खोलूं और वहां से म्यूजिक सुनूं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे, अब मैं गाड़ी में हूँ और मैं नहीं सुन सकती, आई कांट कैरी द होल होम थिएटर सिस्टम विद मी इन माई कार, ठीक है, व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग, या मैं ब्रेक में हूँ, या मैं कहीं मतलब लेजर टाइम में हूँ और मैं घर से बाहर हूँ, ठीक है, तो जितने मोबाइल गैजेट्स हैं जिनमें आज वेब की मतलब इंस्टॉलेशन है, वेब जिसमें अवेलेबल है, तो वहां से फिर आप ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मूवीज देखने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठूं टेलीविजन के, आज हम मूवीज जो है वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। यूट्यूब मूवीज जो है हमें नेटफ्लिक्स से भी हम देख रहे हैं, मूवीज जो है हम गूगल से भी देख रहे हैं, मूवीज जो है हम याहू से भी देख रहे हैं। ठीक है, सही है। तो टेलीविजन जो है जरूरी नहीं है कि लाजमी हो हमें एंटरटेन करने के लिए, मतलब फ्रॉम म्यूजिक टू न्यूज टू वीडियोस टू टॉक शोज टू फिल्म्स, हमें बहुत चीजें जो है आज ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो मीडिया जो है स्टूडेंट्स, वो आज हमारे पास उसके बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले सिर्फ टेलीविजन होता था, ठीक है, सही है। मीडिया में अखबारात भी आते हैं, मीडिया में अखबारात भी आते हैं। तो एक टाइम था कि घर पे जो था लोगों के, वो पेपर फॉर्म में अखबार डिलीवर होता था, न्यूज़पेपर जो है या मैगजीन जो है पेपर फॉर्म में डिलीवर होते थे। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी क्या है कि हम जो है, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम ऑनलाइन जाके जो है वो ई रीडर्स हैं हमारे पास, ई न्यूज़पेपर्स हैं हमारे पास आज। ई रीडिंग के थ्रू भी हम अपने आप को अक्वेंट करते हैं कि दुनिया में, शहर में, मुल्क में, जगह यहाँ पे क्या मतलब हैपनिंग्स हो रही हैं, या हो चुकी हैं, या होने वाली हैं। ठीक है, सो हमारे पास न्यूज़ जो है, जो न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी आज जो है, आम हम कह सकते हैं उनके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहले हम सिर्फ अखबार पढ़ते थे, आज वही चीज जो है मैं ई पेपर के थ्रू भी पढ़ रही हूँ। तो कंटेंट कैसा है, ऑनलाइन हो गया ना। ठीक है, there's an alternative. I can have the newspaper delivered to my home from the news hawker. I can ask the person to have it delivered. दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं सुबह टैब खोल के डॉन के वेबसाइट पर जाके वहां से ई पेपर पढ़ लेती हूँ, उसके आर्काइव में पिछले 10 साल के पेपर्स भी रखे हैं। ठीक है, सही है। तो ऑप्शन है मेरे पास कि या मैं हार्ड कॉपी पे पेपर इस्तेमाल करूँ, या फिर ऑनलाइन पढ़ लिया करूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट्स जो है, जो, अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसका मतलब क्या है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी आज ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले हम मूवीज देखने के लिए सिनेमा जाते थे, अब मूवी में जो है यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं देख लेती हूँ। ठीक है, या फिर कुछ पेड साइट्स हैं, वहां पे आप पे करके जाके, मंथली सब्सक्रिप्शन है, जैसे नेटफ्लिक्स है, मंथली सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, आप पे करते हैं और आप मूवी को देख सकते हैं बैठ के। आई डोंट नीड टू गो टू अ सिनेमा, या मुझे स्टैंडर्ड केबल टेलीविजन या सैटेलाइट टीवी देखने की जरूरत नहीं है, वेट करना कि सैटरडे को मूवी आएगी तो हम बैठ के देखें, किसी भी टाइम पे बैठ के देख सकते हूँ।
तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है, आज ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रही है, ठीक है, और वेब के थ्रू कर रही है। अगर वेब ना हो, वेबसाइट मतलब इंटरनेट ना हो, वेब की सहूलत ना हो, तो नेटफ्लिक्स काम नहीं करेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बैठ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक टाइम था कि हॉलीवुड जो था मूवी से बनाता था तो सिनेमा से मूवीज लगती थी, ठीक है, और लोग जो है वो टेलीविजन शोज, टेलीविजन मूवीज आती थी, सिनेमास में मूवीज आती थी, और दैट इज हाउ इट यूज्ड टू मेक मनी। लेकिन अब क्या है, हॉलीवुड को भी सोचना है कि ऑनलाइन जब लोग मतलब घरों पर बैठ के बगैर सिनेमा आए हुए एंटरटेन हो रहे हैं, तो मुझे भी कोई ऑल्टरनेट सोचना है। आई मीन वो मूवीज बनाता जा रहा है, लेकिन उसको आज जो है अलायंसेस करने हैं, उसको आज दोस्ती करनी है, उसको आज हाथ बढ़ाना है उन तमाम ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू। देखो यार, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के पास टेक्नोलॉजी है कंटेंट को ऑनलाइन लेके आना, उसमें कंटेंट क्या होगा वो तो हॉलीवुड जानता है ना, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो मीडिया इंडस्ट्री है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा वरना दे विल बी ऑब्सोलीट, ठीक है। टेलीविजन के थ्रू न्यूज अब बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन न्यूज बनती है। तो जो मीडिया हाउसेस हैं दे हैव टू कोलैबोरेट विद ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, उसके पास वेब की सहूलत है, वेब की टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू उस न्यूज को वेब पे अवेलेबल कर सकता है। न्यूज क्या होगी वो डॉन ने खुद बनानी, वो जंग ग्रुप ने खुद बनानी, ठीक है। तो दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो डॉन न्यूज है वो अपना चैनल टेलीविजन पे बंद करेगा। टेलीविजन की अपनी ऑडियंस है, हम बात करेंगे आज टेलीविजन की अपनी ऑडियंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग जो हैं वो कन्वर्ज होके अब यूट्यूब से खबरें सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। टेलीविजन की अपनी ऑडियंस है ऐसे लोग दुनिया में, अमेरिका में भी, दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी में भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे टेलीविजन से लोग खबरें सुनते हैं और टेलीविजन से अपने आप को लोग अक्वेंट करते हैं। दे कैन अफोर्ड टू रीड न्यूज ऑनलाइन, ई न्यूज से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अखबार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये खैर अलग अलग दो साइकोग्राफिक्स हैं, अलग अलग वो लाइफस्टाइल्स हैं। चैप्टर बहरहाल इस बारे में है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है ये कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, एंड दे हैव टू डू अलायंसेस, दे हैव टू जॉइन हैंड्स विद ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स, क्योंकि मीडिया आज काफी वास्ट है, ठीक है। ऑडियंसेस जो हैं वो मीडिया को काफी वास्ट देखना, सुनना और अवेलेबल होना चाहती हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं जब घर पे हूँ तो मुझे न्यूज़ टेलीविजन से भी मिले। मैं चाहती हूँ मैं घर से बाहर हूँ, मेरे पास मेरा टैब होता है तो मैं टैब खोल के वहां से भी न्यूज़ सुन सकूँ, ठीक है। तो जो न्यूज़ प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, न्यूज़ प्रोवाइडिंग जो एजेंसीज हैं, फॉर इंस्टेंस जंग ग्रुप है या डॉन ग्रुप है, उनको इस बात को एनालाइज करना है कि जैकलिन एक स्टैंडर्ड ऑडियंस है हमारी जो टेलीविजन पे होती है, घर पे है, तो टेलीविजन घर पे है ना, घर का एक डिवाइस है, तो घर पे उसको न्यूज वहां से सुननी है, तो मुझे अपने आप को वहां पे भी अवेलेबल करना है। जब भी खातून घर से बाहर होती हैं तो इनके डिवाइसेस चेंज होते हैं, डिवाइसेस मोबाइल होते हैं, तो मुझे अपने आप को आज वहां पे भी प्रेजेंट करना है, ठीक है। वहां प्रेजेंट करने के लिए उनको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स से अलायंसेस करने हैं, उनसे उनको उनके साथ मतलब पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन के साथ काम करना है, ठीक है। ये तो हो गया मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा, इस तरह से स्टूडेंट्स पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी काफी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। मैंने आपसे कहा कि अखबारात पहले पब्लिश होते थे, ठीक है, किताबें पहले पब्लिश होती थी, दुनिया में अभी भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया में अभी बुक स्टोर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किताबें क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में स्पेशली जो है वो पीपल रीड थिंग्स ऑनलाइन। जो किंडल है, ई ई सर्विसेज हैं, ई न्यूज हैं, ई बुक्स हैं, हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज हैं बुक्स की, तो इनके होने की वजह से दुनिया में बहुत जगह पे जो है वो बुक स्टोर्स फिजिकली खत्म होते जा रहे हैं। तो पब्लिशिंग हाउसेस जो हैं या पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है जिसमें मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब जो है ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये इंडस्ट्री श्रिंक होती जा रही है और ये ट्रांसफॉर्म होकर अब ऑनलाइन अपने आप को लेके आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% जो है वो अखबार अब नहीं छपेंगे, दुनिया में किताबें नहीं छपेंगी, इनकी भी ऑडियंस है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या जो मीडिया इंडस्ट्री है ये टोटली जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई है और जो ऑनलाइन कंटेंट है इसने टेक ओवर कर लिया है, कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री को आज भी एज है, ऑनलाइन इंडस्ट्री जो है, ऑनलाइन कंटेंट इंडस्ट्री वो एज लेके जा रही है, दोनों में टाई है, कोई किसी को सुपरसीड कर रहा है, या मतलब इसका एंड क्या है? इज देयर अ रेस कि ऑनलाइन कंटेंट इतना मतलब प्रेवलेंट हो जाएगा कि लोग टेलीविजन देखना छोड़ देंगे और सैटेलाइट और केबल टेलीविजन खत्म हो जाएगा, या हार्ड कॉपी बुक्स तो खरीदना छोड़ देंगे, या म्यूजिक जो है वो म्यूजिक स्टोर से बिकना बंद हो जाएगा, ठीक है, और लोग ऑनलाइन म्यूजिक ही सुना करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग ही हुआ करेगी, क्या है, ठीक है। तो दैट चैप्टर इज अबाउट दिस, ठीक है, सही।
अच्छा, आपको आई एम श्योर चैप्टर का थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अब मैं चैप्टर को आपको थोड़ा सा, लेट मी ओपन द विंडो टू यू ऑन इट। ठीक है। अच्छा, तो मैं जैसे प्रीवियसली आपके साथ करती हूँ कि मैं आपको चैप्टर के जो है पैसेजेस जो है उनकी जिस्ट देती जाऊंगी, और आपने जो है उसको वो उसे आपने एनालिसिस बताना है कि चैप्टर किस बारे में है। ठीक है, सही। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका ओपनिंग पैसेज है, ये तो मैंने पूरा अभी आपसे जो शेयर किया पिछले 15 मिनट जो आपसे मैंने बात की है, मैंने आपको इसी ओपनिंग पैसेज के बारे में आगाही दी है। ठीक है, सही है। कि ऑनलाइन कंटेंट क्या है, और जो नीड फॉर केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन है इसकी क्या नौयत है, टेलीविजन की नीड आइंदा वक्तों में होगी या नहीं होगी। अच्छा, इस चैप्टर में हम जो मजीद बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंजिंग व्यूअरशिप एंड रीडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। ठीक है, हम जब व्यूअरशिप की बात कर रहे हैं तो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और हम जब रीडिंग हैबिट की बात कर रहे हैं तो हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर बेसिकली फोकस आपका दो इंडस्ट्रीज पे है कि जब से जो है कंटेंट अब ऑनलाइन अवेलेबल है, लोगों को न्यूज जब यूट्यूब से सुनने को मिल जाती है, किताबें जब उनको ई रीडर के थ्रू पढ़ने को मिल जाती हैं, मूवीज जो है लोग अब सिनेमा हाउसेस कम और टेलीविजन पे कम और डाउनलोड करके ज्यादा देखते हैं या सब्सक्रिप्शन के थ्रू देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे है। तो क्या मतलब लोग क्या, जब लोग नेटफ्लिक्स मूवी देखते हैं या ऑनलाइन मूवी देख रहे होते हैं, तो क्या वो ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स एंटरटेन होते हैं या वो टेलीविजन से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स एंटरटेन होते हैं। किताब जब हाथ में रह के पढ़ी जाती है हार्ड कॉपी में, तो उस वक्त ज्यादा पढ़ी जाती है, जब हम जब ई बुक पढ़ते हैं तो वो ज्यादा पढ़ी जाती है। तो हम थोड़ी बात करेंगे कि चेंजिंग व्यूइंग एंड रीडरशिप हैबिट्स लोगों के, और ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और इंटेलेक्ट और एनालिसिस ज्यादा होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है ऑनलाइन कंटेंट का, ये जो न्यूज है, म्यूजिक है, वीडियो है। ठीक है, जब ऑनलाइन अवेलेबल है ना हमारे पास, ठीक है, तो प्रिंट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा, फिर जो ब्रॉडकास्ट और केबल टेलीविजन इंडस्ट्रीज का क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, जो मीडिया जायंट्स हैं क्या ये बंद हो जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या है। ठीक है, सही है। तो जो बेसिक लर्निंग स्टेटमेंट आउटकम इस चैप्टर का है, वो वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन द पब्लिशिंग एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, सही है। Because basically they have made an attempt to transform their traditional media into something that is more deliverable on the web today. ठीक है, सही है। This is opening, this is unleashing, opening and bringing forth new experiences for consumers. को consumers पहले टेलीविजन के सामने बैठ के न्यूज देखते थे, उनके पास और एक ऑप्शन है कि वो आज ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो जाहिर है उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, तो हम उन एक्सपीरियंसेस की बात भी करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इससे जो है मीडिया हाउसेस जो हैं, ये जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, इंफॉर्मेशन को लेके, न्यूज़ को लेके, मूवीज को लेके, ये जो है ये किस तरह से जो है वो प्रॉफिट अर्निंग कैसे हो रही है। ठीक है, सही है। सो लेट अस स्टार्ट। पहली बात ये कि ऑनलाइन कंटेंट क्या है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा तो आपको बताया, हम दोबारा से बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कंटेंट जो है, अच्छा, हम राइटर जो है वो ऑब्वियसली उसने अमेरिकन इकोनॉमी को लेके ये किताब लिखी है, और अमेरिकन इकोनॉमी बाय फार सबसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है एज ई कॉमर्स एंड ट्रेड इज कंसर्न्ड। तो इस वजह से मैंने रिकमेंड भी किया आपको किताब पढ़ने के लिए। इसको पाकिस्तान के साथ भी मुवाजना कर सकते हैं। आई मीन वी आर नॉट दैट आर्केक इन दिस एज फार एज the content of this particular chapter is concerned, so you can find its roots in our country too. Obviously the figures are more I would say swollen as far as the US economy is concerned in this chapter. हमारी figures जो हैं वो ज़रा obviously थोड़ी सी slim होंगी। ठीक है, लेकिन ट्रेसेस हमारे पास दोनों इकोनॉमीज में पाए जाते हैं। तो आपसे बात करते स्टूडेंट, हम ऑनलाइन कंटेंट को अगर हम डिस्कस करें, तो दुनिया में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो यूएस की जो है, वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट जो है सबसे प्रेवलेंट है। ठीक है, no other sector of the economy, the American economy has been challenged by the internet and the web than the content industries. यूएस में मतलब बहुत तेजी से बहुत चीज़ों में तब्दीली आई है और चेंजेस आए हैं, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा चैलेंज इस वक्त है वो कंटेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो जब से इंटरनेट काफ़ी जो है वो पेनिट्रेट किया है और वेब की सहूलतें लोगों के पास काफ़ी आए हैं, जो कंटेंट इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मतलब बहुत लगन में भी हैं, बहुत कोशिश भी कर रही हैं, और टाइम इज अ बिग कंस्ट्रेंट। ठीक है, सही है। हम जब ऑनलाइन कंटेंट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कैटेगराइज करते हैं इनको दो इंडस्ट्रीज में। वी हैव द प्रिंट इंडस्ट्री एंड वी हैव द ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ऑनलाइन जो कंटेंट इंडस्ट्रीज हैं, मैंने आपसे कहा इसमें हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज हैं, ये लिखिएगा अपने पास। द ऑनलाइन कंटेंट इंडस्ट्री, इट हैज टू कैटेगरीज इन इट। वी हैव द प्रिंट इंडस्ट्री। प्रिंट इंडस्ट्री में हमारे पास आता है न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं और मैगजीन्स हैं। ठीक है,
और जो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें मेरे पास टेलीविजन है, इसमें मेरे पास मूवीज हैं, हम टॉक अबाउट फीचर मूवीज, हम टॉक अबाउट रेडियो, हम टॉक अबाउट वीडियो गेम्स, हम टॉक अबाउट म्यूजिक। ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास जो है आज ऑनलाइन अवेलेबल है। न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन है, मैगजीन्स ऑनलाइन है, बुक्स ऑनलाइन है, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन है हमारे पास, जिसमें टेलीविजन शोज से लेकर टेलीविजन की नशियात ऑनलाइन अवेलेबल होती है, मूवीज होती है, म्यूजिक है। तो ये जो पूरी ऑनलाइन कंटेंट है हमारे पास, तो यूएस में अगर हम फिगर्स की बात करें तो इट्स बेसिकली समवेयर जनरेटिंग अराउंड $24 बिलियन। और ये 2013 की फिगर्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर हम 2016 की फिगर्स अगर शेयर करें तो लगभग हमारे पास जो है ये 23 बिलियन की फिगर्स हैं, ठीक है, 2016 में। और अगर मैं आपसे 2013 की शेयर करूं तो ये 24 बिलियन का है। सो इट्स अ बिग टिकट इंडस्ट्री, राइट। अच्छा, एक बात तो तय है कि द वेब एक्ट्स एज अ पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन कंटेंट अगर लोगों को, जिसमें अखबारात हैं, न्यूज़ है, वीडियोस हैं, म्यूजिक है, किताबें हैं, गेम्स हैं, लोग अगर ऑनलाइन मिल रहा है तो एक जो बेसिक प्लेटफॉर्म है इसमें, जिसके थ्रू ये सब चीज़ें लोगों को मिल रही हैं आज, वो क्या है? वेब। ठीक है। So the web is basically a source of online content, which is a powerful source है and a more or less a distribution platform. ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज की मैंने आपसे बात की यहाँ पे, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं और जो प्रिंट इंडस्ट्रीज हैं, ये जो है ऑनलाइन कंटेंट मार्केट प्लेस में सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट शेयर इनका है। ठीक है, सही है। और एवर सिंस जो है मामला जो है अब ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू भी अवेलेबल हैं, एक ऑल्टरनेटिव कंज्यूमर के पास है कि वो ऑफलाइन भी मतलब किताबें पढ़ सकता है। ऑफलाइन का मतलब फिजिकल फॉर्म में जो हम पहले पढ़ते थे। ठीक है, अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मूवीज देखना है, गेमिंग है, वीडियो गेम्स हैं। और तो ये चीज़ें पहले फिजिकल मीडिया के थ्रू अवेलेबल थी, ठीक है, ऑफलाइन अवेलेबल थी, लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो उससे हुआ क्या है कि ब्रांड जो पहले ऑफलाइन थे वो आज ऑनलाइन आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी विजिबिलिटी करानी है, उन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देनी है। जब कंज्यूमर ऑनलाइन आया है तो वो तो मतलब वो अनसीन तो नहीं रह सकते ना। ठीक है, सही है। ऑनलाइन प्रोवाइडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके लिए मतलब नया नया एवेन्यूज हैं ग्रोथ के। कंज्यूमर्स के लिए इस ऑल्टरनेटिव के में कंस्ट्रेंट्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, फिर कुछ लीगल इश्यूज भी हैं। जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑनलाइन, उसको फिर डिजाइन गलत तरीके से करना पड़ता है, और इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर्स के पास स्मार्टफोन्स भी हों और टैबलेट कंप्यूटर्स भी हों। ठीक है। तो ऑनलाइन कंटेंट जो है ये ऐसा नहीं है कि ये इट्स अ वन मैन शो, जहाँ पे जो कंटेंट ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है जो कंटेंट बना के दे रहा है, भेज रहा, डिजाइन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ये भी देखना है कि अगले एंड पे जो कंज्यूमर है उसके पास गैजेट्स हैं उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव टेबल 10.1। इसमें हम क्या देखेंगे, वील डिस्कस द मोस्ट रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑनलाइन कंटेंट एंड मीडिया। ठीक है, सही है। 2017 तक जो है, 2017 तक जो है ये, जस्ट अ मिनट बेटा। टेबल 10.1 को हम जरा गो थ्रू करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या मतलब ऑनलाइन कंटेंट जब से सामने आया है। ठीक है, हमारे पास जब से यूट्यूब के थ्रू और गूगल के थ्रू और याहू के थ्रू बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन आज ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर बिजनेस, व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है, सही है। तो पहले मैं आपसे जो है वो बात करती हूँ सोसाइटी को लेके। ठीक है, सही है। पहले मैं आपसे बात करती हूँ सोसाइटी को लेके। ठीक है, सही है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, सोसाइटीज कैसे अफेक्ट होती हैं। सोसाइटीज का जो इफेक्ट है वो कुछ 3-4 तरीकों से आपकी किताब ने बताया है, लेकिन मैं आपसे कुछ इसके बियॉन्ड भी चीजें शेयर करूंगी। ठीक है, सही है। कि एवर सिंस जो है ये न्यूज़ जो है या एंटरटेनमेंट जो है, ये
लोगों के पास ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन भी है, तो हाउ इज इट अफेक्टिंग सोसाइटी? सबसे पहले अगर हम मीडिया कंजम्पशन को देखें, तो आपकी किताब कह रही है कि अमेरिकन स्पेंड अराउंड सम 4,300 hours a year consuming various types of media, more than twice as many hours as they work. ठीक है, तो मीडिया कंजम्पशन भी बढ़ी है। ठीक है, ईयरली जो आवर्स स्पेंड किए जाते हैं, ठीक है, ऑन वेरियस मीडिया इन द यूएस, वो मीडिया चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी हो, तो कोई 4,300 घंटे ईयरली जो है आम उम्री की स्पेंड करता है। ये उसकी मीडिया कंजम्पशन के आवर्स हैं, ये एक साल में है, एंड दीज आर मोर आवर्स देन द टाइम ही स्पेंड्स ऑन वर्क। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ज्यादा आएंगे तो आप फिर आपके मीडिया कंजम्पशन भी बढ़ेगी ना। पहले टेलीविजन जब घरों में होता था तो पीपल हैड टू कम बैक होम आफ्टर वर्क टू वॉच टेलीविजन, बी इट न्यूज और बी इट अ प्ले और बी इट अ ड्रामा और अ मूवी। लेकिन अगर वही चीज उसको घर से बाहर भी मिल रही है, मोबाइल गैजेट से मिल रही है और डिवाइसेस उसके पास है, तो ऑब्वियसली उसकी वो फिर टाइम क्रिएट करके मोर आवर्स स्पेंड करके भी उन चीजों का एक्सेस लेगा ना। ठीक है, सही है। तो मीडिया कंजम्पशन जो है ये बड़ी है, और ये अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है। ठीक है, फिर टाइम स्पेंट यूजिंग डिजिटल मीडिया एक्सीड्स टाइम स्पेंट विद टेलीविजन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि लोग जो है जितना टाइम टेलीविजन पे लगाते हैं उससे ज़्यादा टाइम जो है लोग स्पेंड करते हैं डिजिटल मीडिया। ठीक है, सही है। इसमें क्या जाता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन डिजिटल मीडिया, इट बेसिकली इंक्लूड्स टाइम स्पेंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, people spend less time on desktop, people are spending more time on digital media devices, people are spending less time on television and desktops and more time on मोबाइल डिवाइसेस एंड डिजिटल मीडिया डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, हैंडी होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, आपको आप घर से बाहर भी लेके जा सकते हैं उनको, तो आपका टाइम से ज़्यादा लगता है, जाहिर है। ठीक है, सही है। फिर इसमें पास क्या है कि अच्छा, जो जो इसकी पेनिट्रेशन बढ़ रही है अमेरिका में, ठीक है, तो इनके यहाँ जो है इसके रूल्स जो है इसको ब्लॉक करने के, इसको स्लो डाउन करने के, इसकी स्पीड को मतलब अ, बढ़ाने के, वेबसाइट्स के एक्सेस के जो है उन रूल्स में भी काफी चेंजेस आते जा रहे हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक दो चीज़ आपसे और भी बात करूंगी, वो ये है कि एक ऑब्जर्वेशन है कि जो यंग एडल्ट्स हैं, दे वॉच मोर टीवी ऑन इंटरनेट एंड लेस ऑन केबल। यंग एडल्ट्स जो हैं उनका एक बिहेवियर आपसे शेयर किया गया, सोसाइटली शेयर किया गया है कि एवर सिंस कंटेंट अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो जो यंग एडल्ट्स हैं, अगर हम एज और डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरनेट पे ज़्यादातर क्या चीज़ देखते हैं, ज़्यादातर इंटरनेट पे टेलीविजन देख रहे होते हैं, टेलीविजन की नशियात है, प्रोग्राम्स हैं, वो देख रहे होते हैं। और क्योंकि अब वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो दे आर वाचिंग लेस केबल नाउ। ये सोसाइटली एक चेंज नज़र आ रहा है अमेरिका में हमें। और अगर हम एप्पल को देखें तो एप्पल जो है वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जो है इट्स क्रिएटिंग क्वाइट बिट ऑफ वेव्स। एप्पल इज फाउंड टू हैव एंगेज्ड इन ई बुक प्राइस फिक्सिंग। ठीक है, सही है। तो ये कुछ चेंजेस सोसाइटली वहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी किस तरह से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी में क्या एप्लीकेशंस हैं, अगर हम ऑनलाइन कंटेंट को देखें तो लेट अस टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स। द वेरी फर्स्ट थिंग कि नेटफ्लिक्स जो है it remains the largest consumer of bandwidth, consuming about 35% of internet traffic, while Amazon and Google are ramping up with their bandwidth consumption. तो हमने देखा कि नेटफ्लिक्स जो है वो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटेबल है। ठीक है, सही है। इट कंज्यूम्स अराउंड 35% ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। 35% लोग इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स जो है वो इसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, सही है। इसके अलावा जो है एप्स का बहुत इस्तेमाल है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात अगर करें तो एप्स का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सही है। दुनिया में एक मुशाहिदे के मुताबिक देयर आर अराउंड मोर देन 1 बिलियन एप्स अवेलेबल नाउ। मोर देन 1 बिलियन एप्स अवेलेबल नाउ।
ठीक है, एंड सून इज गोइंग टू बी, यूएस इज गोइंग टू बी एन ऐप इकोनॉमी। ठीक है, सही है। तो ऐप्स का इस्तेमाल काफ़ी प्रेवलेंट है। ठीक है, एंटरटेनमेंट में मैंने आपसे कहा कि नेटफ्लिक्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक को जो है वो कंज्यूम करता है। पहले लोग जो थे वो इंटरनेट ट्रैफिक ज़्यादा गूगल कंज्यूम करता था। ठीक है, सही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अमेजोन कर रहा होता था, लेकिन अब क्या है, नेटफ्लिक्स भी है और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है आप देखें कंज्यूमर बैंडविड्थ जो है कितनी सबसे ज़्यादा कही जा रही है। ठीक है, फिर जो है हम ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली जो है स्मार्टफोन्स जो हैं, टैबलेट्स जो हैं एंड ई रीडर्स टुगेदर क्रिएट अ रिच मोबाइल मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है कि फोन्स पहले जो थे हमारे पास, जो पहले फोन्स आते थे कोई 16 साल पहले, 17 साल पहले, वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन एवर सिंस स्मार्टफोन्स आए हैं, टैब्स आए हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ई रीडिंग की तरफ रुझान बढ़ा है काफ़ी। ठीक है, और ये जो है सिर्फ ई रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते, स्मार्टफोन्स और टैब्स जो है ये एंटरटेनमेंट की इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं हमारे लिए। तो टेक्नोलॉजी जो है, जो स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो नेटफ्लिक्स की है, या टेक्नोलॉजी जो एप्स की है, इससे आप देखें कि लोगों की जो है एंटरटेनमेंट से लेके लोगों की जो इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं वो सारी पूरी हो रही है। ठीक है, सही है। क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज जो हैं सारी, ये जो हैं ये दे आर ह्यूज मार्केट फॉर मोबाइल डिवाइस कंटेंट। ठीक है, सही। एप्पल का अपना जो है आई क्लाउड वीडियो सर्विस है। इट अलाउज यूजर्स टू वॉच परचेज वीडियोस, राइट। ठीक है, और अमेजोन और गूगल जो है उसके अपने क्लाउड सर्विसेज हैं। तो क्लाउड सर्विसेज क्या करते हैं, बेसिकली कंटेंट को अपने पास स्टोर करते हैं। तो कंटेंट जितना भी बनता जा रहा है उसको स्टोरेज भी चाहिए ना। तो जो आई क्लाउड है वो चाहे एप्पल का हो, अमेजोन का, गूगल का हो, वो एक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं, देखते हैं कि बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो बिजनेसेस में जो है हमारे पास मतलब काफी सारी चीजें हैं, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करती हूँ। कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है स्मार्टफोन्स का और टैब्स का जो है ये काफ़ी एक्सेलरेट हुआ है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, और इसमें हम ट्रांजिशन देखते हैं टुवर्ड्स डिजिटल कंटेंट। ठीक है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं स्मार्टफोन्स और टैब्स को लेके, ठीक है, इनमें एक्सेलरेशन आई है और इनमें ट्रांजिशन देखने में आई है एज फार एज मेकिंग द कंटेंट डिजिटल इज कंसर्न्ड। सो देयर इज एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ of mobile platform, ठीक है, that includes smartphones and tabs, and there's a transition towards digital content. Digital content पहले नहीं होता था, लेकिन जब से content online होना शुरू हुआ है तो smartphones जो हैं और tabs जो हैं दोनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अब जो कंटेंट दिखा रहे हैं कैसा होता है, डिजिटल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे एक बात जो कि नहीं की गई जिसको हमें देखना चाहिए था, वो ये है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज में अब क्या है, वर्टिकल इंटीग्रेशन काफी सामने आ रही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि यू ओन योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन किसी से नहीं कराते, आप खुद ही कर रहे होते हैं। जैसे अमेजोन है, ठीक है, और यूट्यूब है गूगल का, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, ये अपना ही प्रोड्यूस करके अपना ही काम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकली मामला काफी इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। ठीक है, सही है। they don't need a second distributor, they have vertical integration, be it Amazon or be it YouTube, of Google's or be it Netflix, they are owners of their own distribution channels. ठीक है, they enter the production business for videos and books and online TV like channels and they distribute themselves. और हमने ये भी देखा कि अच्छा नहीं, आपके सॉरी बताया गया है कि Amazon, Google and YouTube and Netflix become significant players in the content production business. ये vertical integration की बात की गई है. This is vertical integration. ठीक है, they are not using a third party to distribute, they are having it done themselves. ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है केबल इंडस्ट्री जो है, जिससे मैं जिक्र कर रहे थे अभी आप में सेशन में आपसे अभी थोड़ी देर पहले, कि ये भी काफी जो है ये ट्रांसफॉर्म भी हुई है और डिस्टर्ब भी हुई है, क्योंकि कंटेंट अब ऑनलाइन आ गया है ना, लोगों के पास अब ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो केबल इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू बी डिस्टर्बेड बाय द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कंटेंट प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, डिस्टर्बेंस तो हुआ है, हम नहीं कह सकते कि तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। परसेंटेज ऑफ इंटरनेट यूजर्स हु वॉच डिजिटल वीडियो कंटिन्यूज टू इंक्रीज। ठीक है, ये यूएस की बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये दुनिया में एक रुझान है कि इंटरनेट यूसेज जो है वो जब दुनिया में जब बढ़ी है तो डिजिटल वीडियोस का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ अमेरिकन वॉचिंग टीवी ऑनलाइन कंटिन्यूज टू ग्रो टू ओवर दिस मच। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एक तरफ तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट
व्यूइंग जो है एज एन ऑल्टरनेटिव जो लोगों के पास सामने आई है, तो खबरें वहां पर भी सुन सकते हैं आप, नशियात वहां पर भी सुन सकते हैं, एंटरटेन वहां पर भी हो सकते हैं आप। तो ऐसा कैसे है कि ये जो नंबर ऑफ अमेरिकन वाचिंग टीवी ऑनलाइन कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब टेलीविजन व्यूअरशिप जो है ये अपनी तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है, और ऑनलाइन कंटेंट भी साथ साथ बन रहा है, तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो ई बुक सेल्स हैं, ई बुक सेल्स ग्रोथ स्लोज बट रिप्रेजेंट्स वन थर्ड ऑफ ऑल बुक्स रेवेन्यूज। देखिए ई बुक्स का जो ट्रेंड है ये अभी जो है स्टार्टेड पिकिंग रूट्स, ठीक है, ये मतलब इसने बुक स्टोर्स को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया है, लेकिन ये है कि इसने को वन थर्ड रेवेन्यू जो है बुक स्टोर्स का अब्जॉर्ब कर लिया है, कि ये सेल्स स्लो है लेकिन ये सामने आ चुकी है, ठीक है। Americans continue to spend more on online movies than for DVDs. DVDs पहले खरीदी जाती थी, लेकिन अब क्या है, जब entertainment आपको online मिल रही है, तो people in the US they continue to spend more on online movies and they're spending less on DVDs, ठीक है। फिर alternatives की बात हो गई, सहूलत की बात हो गई, right? The same people tend to spend more on digital music than on physical units, ठीक है। CDs लाके सुनना म्यूजिक फिजिकल यूनिट है, लेकिन आप डिजिटली म्यूजिक सुन सकते हैं, तो दैट इज मोर एक्सेसिबिलिटी। तो देखने में आया पीपल स्पेंड मोर टाइम इन द यूएस, पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन डिजिटल म्यूजिक एंड मोर ऑन स्ट्रीमिंग म्यूजिक देन डाउनलोडिंग म्यूजिक, ठीक है, सही है। ऑनलाइन रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स एक्सीड्स प्रिंट रीडरशिप, ठीक है। प्रिंट रीडरशिप क्या है, हाथ में अखबार का होना, पेपर का होना, ठीक है। तो ऑनलाइन रीडरशिप जो है ये बढ़ रही है। प्रिंट रीडरशिप खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर हम देखें कि विच इज एक्सीडिंग विच वन, तो ऑनलाइन रीडरशिप इज एक्सीडिंग द प्रिंट, ठीक है। और ऑनलाइन एड रेवेन्यूज जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, जब बिजनेस कंसर्न को चल रहा है, पता है कि ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है और कंज्यूमर वहाँ पे आता है, ऑडियंस वहाँ पे आती है, तो वहाँ पे एड्स भी दे रहे हैं, और उन एड्स की जब व्यूअरशिप होती है तो दे गेट पेड, ठीक है, तो दे आर मेकिंग रेवेन्यूज आउट ऑफ इट, ठीक है। सो ऑनलाइन एड रेवेन्यूज ग्रो, लेकिन ये इनकी ग्रोथ इतनी नहीं है कि आप मतलब प्रिंट में ऐड देना छोड़, ठीक है। मैं जब गूगल का पेज खोलती हूँ अपना, तो कहीं पर नेस्ले मिनरल वाटर का ऐड आ रहा होता है, और एक तरफ जो है टॉन न्यूज़पेपर में सुबह आज नेस्ले मिनरल वाटर का ऐड आया है, तो ये जुमला बेसिकली आपसे कह रहा है कि नेस्ले अपना ऐड ऑनलाइन भी दे रहा है और ऑफलाइन भी दे रहा है, अखबार में भी दे रहा है। प्रिंट में उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये आपसे कहा जा रहा है कि प्रिंट प्रिंट से जो है नेस्ले ज्यादा कमाता है, प्रिंट न्यूज़पेपर में जब वो ऐड देता है तो रेवेन्यूज उसके ज्यादा आते हैं कंपैरिजन टू ऑनलाइन, लेकिन बहरहाल ऑनलाइन की भी ऑडियंस है और वहां पे भी अपनी प्रेजेंस को शो कर रहा है, ठीक है, सही है। कंसोल गेम्स जो हैं, द सेल्स फ्लैटन एज मोबाइल गेमिंग सोल्स, तो पहले लोग कंसोल्स खरीदते थे, अब क्या है, मोबाइल गेम्स आ गए हैं, तो यहाँ पे मतलब हम थोड़ी सी देख रहे हैं कि इट हैज कॉस्ट अ स्लाइट डेंट ऑन द सेल ऑफ कंसोल्स, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द फोर इंटरनेट टाइटंस, एप्पल, गूगल, अमेजॉन एंड फेसबुक। दे वाई फॉर ओनरशिप ऑफ ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही है। इनका चारों का गोल क्या है कि ये मतलब दुनिया की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिशिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सही है। ये दे वांट टू टेक ओनरशिप ऑब्वियसली, ठीक है, ये एक रेस है और एक कंपटीशन है, और वो चाह रहे हैं कि हम इस कंपटीशन में जो है, दे वांट टू बी टाइटन्स इन दोस फील्ड्स टू, ठीक है। सो बी इट the entertainment industry or the publishing industry, they want to have an edge in that, ठीक है, सही। तो ये हमने डिस्कस किया टेबल 10.1 को, राइट। इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे मीडिया यूटिलाइजेशन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स मीडिया यूटिलाइजेशन की। उससे पहले मैं आपसे बात करूंगी कंटेंट, ऑडियंस एंड मार्केट की, वेयर आर द आई बॉल्स एंड द मनी, हम ये बात करते हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मीडिया यूटिलाइजेशन की, ठीक है, सही है। And we'll then talk about internet and traditional media cannibalization and complementarity, media revenues की हम बात करेंगे। We'll talk about the three models of digital content. We will talk about the online content consumption, ठीक है, free of fee, attitudes about paying for content and the tolerance for advertising. We'll have a discussion on this. We'll talk about digital rights. We will talk about media industry and structure. This is a very important passage. Media convergence, technology, content, and industry structure. Very important passage. And this will end 10.2. Right? Okay. Just
Let me restart the session. Just I'm coming in a while.